السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت ابو سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر اتفاقاً عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بندہ اللہ کا نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک اور ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان کی نماز جنازہ کے لیے باہر میدان میں چلو۔ اللہ کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ضحاک بن قیس اترے اور ان کی نعش کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت معاذ، سبحان اللہ، صحابہ کا نام دیکھو کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے نام میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموں میں ایک ایسی لذت پائی جاتی ہے اللہ کے نام میں تو کسی کے نام میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی لذت ہے، اسی طرح صحابہ کے ناموں میں بڑی لذت ہے۔ کیا نام ہے؟ دیکھو، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اللہ صحابہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو واقعہ ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا سعید بن زید، حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ میں سے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ طاعون میں، طاعون اللہ کی طرف سے ایک بیماری جو پھیلتی ہے، جسے مثال کے طور پر فی الوقت کرونا جو ہے، یہ بھی طاعون ہو سکتا ہے، یا اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، یا اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو طاعون ایک ایسی بیماری جو پھیلتی تھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے بہت صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت
अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ताउन में मुब्तला हुए। अरे बस, तो उन्होंने फरमाया कि मुआज, मेरी जिम्मेदारी है लोगों को नमाज पढ़ाने की, इसलिए क्या करो तुम पढ़ाओ, नमाज क्या करो तुम पढ़ाओ। तो हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला लोगों को नमाज पढ़ाई। चुनाचे अल्लाह की शान, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह का इंतकाल हो गया। तो इसके बाद हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला खड़े होकर लोगों के सामने बयान फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा करो अल्लाह से। अल्लाह खुद फरमाती, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, खालिस सच्ची और पक्की तौबा करो अल्लाह से। तौबा के लिए शर्त है, कोई भी आदमी तौबा करना चाहता है, पक्का आइंदा से गुनाह नहीं करता, इरादा आना, पक्का इरादा, और उस गुनाह को छोड़ डालना, और उस गुनाह को छोड़ डालना, पक्का छोड़ने का आज़्म भी होना और उसे छोड़ भी डालना, और दिल में शर्मिंदगी भी होना, दिल में हसरत भी होना, दिल में पछतावा भी होना। और किसी इंसान को तकलीफ देने का गुनाह है तो उससे माफ़ी भी मांगना। अगर तुम्हें तौबा करना चाहते हैं तो जिसे किसी को आप सताए हैं इंसानों में से, उनसे माफ़ी भी मांगना। अगर उनसे माफ़ी मांगने में शर्म आ रही है तो उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ को बख्श भी देना, बख्श डालना। आराम से 10 मरतबा कुल हु अल्लाह अहद का सूरा पढ़ लिए, अल्लाह तबारक व तआला कितना सवाब रखा मैं मालूम भी नहीं उसमें। हर एक मोमिन बैठे बैठे किसी की ग़ीबत कर डाला, भूल चुके ज़बान से ग़ीबत आ गई, किसी की चुगली खा लिया, किसी के ऊपर बहतान लगा लिया, किसी के ऊपर तोहमत लगा लिया, किसी के ऊपर कीना रख लिया था, किसी के ऊपर बग़्ज़ रख लिया था, किसी से जल रहा था, किसी को हक़ीर समझ रहा था। आसान काम, जाकर माफ़ी मांगना है पहला काम। माफ़ी मांगने से शर्म आ रही है, माफ़ी मांगने से कुछ रिश्ते में फ़र्क आ सकता है, अरे वसद में डर है कि कहीं और हंगामा ना हो जाए, तो ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि रोज़ाना उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़कर बख्शे। मिसाल के तौर पर किसी को देखो दिल में जलन आ रहा है, फौरन बोलो कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर डालो, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करो, अल्लाह इसे कब्र के अजाब से बचा लो। तो शैतान सोचता, अरे ये कौन सी मुसीबत भी, हमें इसे गुनाह में डाले तो इन्हें ऊपर से उसे दुआएं दे रहा है। शैतान फिर दिल में ख्याल डालता नहीं। शैतान पूरा जोर लगा ले, लेकिन तुम्हें क्या करो, नेकियों में आगे बढ़ो, उसे पढ़ को बख्शो, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, उसके दर्जे बुलंद के लिए दुआ करो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो तौबा करने के लिए ज़रूरी शराइत है, तौबा करने के लिए ये ज़रूरी शराइत है। ऐसा आदमी अगर आकर अल्लाह के दरबार में रोता है तो ज़रूर उसकी तौबा कबूल होती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रही है एक आदमी को चीखे मार मार कर रो रहा है अल्लाह के दरबार में। तो अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह इतना रो रहा है, अल्लाह दरख्वास्त है मेरी, एक आजिज़ाना गुजारिश है कि अल्लाह इस बंदे की दुआ आप कबूल कर लो। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, तुम्हें बस उनके आँखों को देख रही, क्या देख रही, उसके आँखों को देख रही, उसका रोना देख रही, उसके दिल को नहीं देख रही तुम्हें। उसके दिल में अभी भी ख्वाहिश है, उसके दिल में अभी भी मेरे अलावा किसी की मोहब्बत रच गई है, बस गई है। पहले उससे खाली करोगा ना, बाद में मैं तौबा कबूल करता। तो बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे, क्या भाई तेरे दिल में किसी की मोहब्बत है अल्लाह को छोड़कर, किसी गुनाह को पक्का नहीं छोड़ने का इरादा कर लिया है तू, नहीं छोड़ने का? तो वो कहने लगा कि जी हज़रत, मेरे दिल में अल्लाह के अलावा भी दूसरों की मोहब्बत है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बेवकूफ़, पहले उससे तो तौबा कर, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग। बहुत सारे रोती दुआओं में, लेकिन प्लान बना पाए रहती, जाते ही फौरन फिल्म देखना, फौरन जाते ही झूठ बोलना, फौरन जाते ही धोखा देना, फौरन जाते ही बीवी के ऊपर हाथ उठाना, फौरन जाते ही माँ बाप को जवाब देना। ये नीयत से तुम्हें चीखा मार मार को रो को फिर घर गए तो फिर फायदा क्या? दुआ कहाँ गई? सर के ऊपर तक नहीं गई, अल्लाह के दरबार में तो दूर की बात है। गुनाह का इरादा दिल में रख ले को तुम्हें जितना चाहे रो लो, अल्लाह को पसंद नहीं आती वो दुआ।
हरगिज भाई अदनान बोला दिखावे का रोना रो रहा, अदनान के सामने बैठ कर रोया भाई, फिर जाता जाता हंस ले को सिगरेट पी ले जा रहा मैं, अब तक रोया, पाप रहम करे, छोड़ा लो भाई जान दे को, छोड़ा इसका तो जाता जाता सिगरेट पी ले को, शर्ट फिरा ले को, शान से जा रहा है, बोलती क्या घमंडी इंसान देखो भाई ने, है कि नहीं? अल्लाह का भी कुछ कानून है, कुछ उसूल ही नहीं, वरना पूरी दुनिया वाले रो रही है अल्लाह के सामने। मैं बोलता हूँ नहीं, हमारे पीर सब कहा करते थे, हमारे शेख सब कहा करते थे दामत बरकातुहुम, अगर अल्लाह चाहता तो हर इंसान के पास 2 फरिश्ते लगाता। अल्लाह के पास इतनी कुदरत भी है, ताकत भी है, अल्लाह कुदरतों का मालिक नहीं, अरे है कि नहीं भाई? इतनी बड़ी मखलूक़ात को संभाल रहा अल्लाह, अल हय्युल क़य्यूम भी है, तो अल्लाह चाहता तो हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते लगाता। एक लगाते हो ना अगर गैर महरम की तरफ देखते तो। मौलाना मक्की साहब दामत बरकातुहू एक मर्तबा कहने लगे कि एक आदमी काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते गैर महरम के ऊपर नजर डालने लगा तो एक मार पड़ा, उसकी आंख चली गई, एक आंखी चली गई उसकी, चीख मारने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आवाज आई मेरे घर के मेहमानों को तू कैसा देखता गंदी नजर से? काबतुल्लाह को आने वाले सब किसके मेहमान? अल्लाह के मेहमान नहीं। अल्लाह के मेहमान को गंदी नजर से देखने वाला तू कौन हो सकता? कितना डरना है नहीं? मस्जिदों में इंटरनेट ऑन करने वाले, मस्जिदों में फेसबुक चलाने वाले, मस्जिदों में व्हाट्सएप चलाने वाले, मस्जिदों में इंटरनेट यूज करने वाले, हरमैन शरीफैन में इंटरनेट यूज करने वाले, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के मेहमान भाई, अल्लाह के घर में ही हमें हमारी ईमानी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है सब कामों को, तो हम ना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं? ये पड़ा मार, आंख चलेगी उसकी, कौन मारे, कहां से मार पड़ा, आंख कहीं गई, 2 भी जाना था, ये कहीं को गई, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुदरत का मार, वो अक्ल हैरान। इसलिए हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुम, हमारे शेख दामत बरकातुहुम फरमाया करते थे अगर अल्लाह चाहता तो हर एक के साथ क्या करता? अल्लाह 2 फरिश्ते लगाता। रात में मोबाइल उठाते 11 बजे फैड़ को पड़ता गर्दन पे, एक इतना जोर का मार भाई फरिश्तों का, वो भी अब्बा का नहीं, किसका? फरिश्तों का। क्या ताकत अल्लाह दिया है उनको। हाँ, झूठ बोलते फौरन पड़ता है गर्दन पर फैड़ को, धोखा देते एक पड़ता तो गुनाह करता था कोई, गुनाह करता था कोई, पूरे के पूरे मस्जिदों में भरे पड़े रहते, कनकनियों से भी गुनाह के, आंखों के कनकनियों से भी इशारे नहीं होता, पढ़ते थे। अरे वह सब में, लेकिन अल्लाह करे नहीं ऐसा। क्यों? अल्लाह को पसंद नहीं है, जुल्म जबरदस्ती की इबादत अल्लाह को पसंद नहीं। हजरत बिलाल चाहता, अल्लाह क्या चाहता? हजरत बिलाल चाहता। मतलब क्या? हजरत बिलाल को कोड़े लगते गए लेकिन जबान पर क्या था? अहद, अहद था। हजरत सुमैया को चाह रहा अल्लाह, सुमैया जबान से अल्लाह करो, अल्लाह के रसूल का इनकार करो, तो हजरत सुमैया कहने लगी मेरा अल्लाह तो मेरे रग रग में है, मेरा अल्लाह तो मेरे खून के कतरे कतरे में है, जबान के कौन से कोने से मैं इनकार करूं? हमारा अल्लाह हजरत अबू बकर को चाह रहा है, हजरत अबू बकर जैसे बनो, अल्लाह चाह रहा हजरत उमर जैसे बनो, अल्लाह चाह रहा हजरत उस्मान जैसे बनो, हजरत अबू बकर की सदाकत लाओ, हजरत उमर फारूक की फारूकियत लाओ, अपने अंदर हक व बातिल की तमीज़ लाओ, हजरत उस्मान का हया और सखावत लाओ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बहादुरी और इल्म लाओ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की इस्तिकामत लाओ, हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ की सखावत लाओ, हजरत तलहा और जुबैर का इल्म लेकर आओ। अल्लाह चाहता सो ये भाई, अल्लाह को बोलती नहीं, ज्यादा पसंद नहीं, कम में लेकिन अच्छा रहना। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज्यादा करने वाले तो बेशुमार ही, अल्लाह को वो नहीं, अल्लाह को दिल से करने वाले। इसीलिए सहाबा की जिंदगियां छोटी थी, सहाबा के आमाल छोटे थे। रोजा मदीने में फर्ज हुआ, ज़कात मदीने में फर्ज हुई, हज मदीने में फर्ज हुआ, नमाज मक्के में फर्ज हुई, वो भी आखिर में 50 साल की उम्र में। आमाल बहुत कम,
ईमान जबरदस्त पहाड़ों जैसा, तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम जन्नतुल फिरदौस के भी हकदार बन गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के हकदार बन गए, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन के हकदार बन गए। सुबहान अल्लाह। देखो, एक है कुरान, एक है कुरान जो हमारे रिहालों में, जो हमारे घरों में, जो हमारे बीरवों में, जो हमारे जोबों में, जो मदरसों में सजता है। एक है कुरान, नबूवत के ज़माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक है ये कुरान, एक है वो कुरान, है कि नहीं, है कि नहीं भी? एक है ये कुरान जो हमारे हाथों में है, जो हम पढ़ रही, जो हम सुन रही कुरान। एक है खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, चलता फिरता कुरान। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करती थी, कान खुलुक़ुहु अल कुरान, नबी को देखना कुरान को देखना दो भी एक ही। एक है पेपर का कुरान, एक है चलता फिरता कुरान। अब कुरान के लिए सूरह जरूरी नहीं, हाँ, कुरान के लिए सूरह जरूरी नहीं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, हाँ, सूरह अनफाल, कैसे कैसे सूरह ही नहीं। एक एक सूरत की खासियत, एक एक सूरत की फजीलत, एक एक सूरत की फजीलत, अल्लाह हर एक सूरत की फजीलत बयान करे। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों का इनकार करार करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरत है हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम, यहूदियों के सबसे बड़े आलिम, यहूदियों की रद में अल्लाह तबारक व तआला हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम को हमारे नबी को दिया कि नहीं। अनफाल, जिहाद के आयतें, जिहाद के अहकाम, तो अल्लाह खालिद बिन वलीद को दिया हमारे नबी को। एक कुरान को अनफाल दिया, वो कुरान को खालिद बिन वलीद को दिया, है कि नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की फ़क़ाहत अल्लाह तबारक व तआला क्या दिया, सूरह अहज़ाब दिया फ़क़ाहत। औरतों के मसाइल, सूरह निसा, औरतों के मसाइल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को दिया। अरे है कि नहीं, सूरह जरूरी थे नहीं। तो इतना जबरदस्त कुरान, कुरान के लिए सूरह जरूरी, तो अल्लाह सहाबा की शक्ल में दिया। कुरान के लिए गिलाफ जरूरी, अरे बासर में, अरे गिलाफ जरूरी नहीं, कपड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला अम्मी आयशा को दिया कपड़े की शक्ल में। अरे बस में कुरान का कपड़ा भी पाक, अम्मी आयशा भी पाक, है कि नहीं। कुरान का कपड़ा भी पाक, अम्मी आयशा भी पाक। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उम्मत की माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पर तहमत लगी, तो अल्लाह खुद आया गवाही देने कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अम्मी आयशा पर जो तहमत लग रही है वो सबसे बड़ा झूठी तहमत है। पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक है, पाक। अल्लाह गवाही दे रहा है कि अम्मी आयशा भी पाक है। हजरत उमर कहने लगे कि हुजूर बातें सब छोड़ो, बस मुझे इतना बोलो कि आप अम्मी आयशा से निकाह मेरे बोलने की वजह से कर लिए? हुजूर बोले नहीं। अबू बकर के बोलने की वजह से कर लिए? नहीं। हजरत उस्मान के मशवरे से कर लिए? नहीं। फिर हुजूर किसकी वजह से आप निकाह करे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उमर, अल्लाह बोला था आयशा से निकाह करो, तो हुजूर अल्लाह पाक है, आप पाक हैं, तो अल्लाह आपके बिस्तर में एक गुनहगार को कैसे दे सकता है? आप पाक हैं तो आपका बिस्तर भी पाक है, तो आपके बिस्तर में रहने वाली बीवी भी अल्लाह आपको पाक ही देता। हुजूर आप खामोश बैठ जाओ, तलवार उठा लिए मेरे पर छोड़ डालो। तो अल्लाह बोलिया जाओ जिब्राइल, फौरन जाओ। जिब्राइल पूछे, तखय्युलात काजी मुतीउल्लाह साहब दामत बरकतहुम बड़ी प्यारी बात कहने लगे कि अल्लाह क्या लेकर जाओ? तो अल्लाह बोलिया कहते हैं क्या भी लेकर जाओ को, उमर जो बोलती वो लेकर आओ, वो कुरान की आयत बना लेंगे। उमर बोले सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह कुरान की आयत बना के छोड़ डाला। क्या जमात बे हजरत साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की। हमें बोलने आता नहीं सतत बुजुर्गान दीन के, हमें बस अल्लाह वालों की बातें लेकर हमें बस नकल करते सो। हमें नया नया पेश करने के लिए हमारे पास है क्या? हमें अल्लाह वालों की बातें पेश करते समय बस होता था नया नया पेश करने के वास्ते।
ऑलरेडी सभी ही अल्लाह वाले, अल्लाह वालों की बातें बोल दिया तो बस, बुजुर्गान दीन की बातें बोल दी बस, उलमा हक की बातें बोल दिया तो बस उनके पीछे से चली गई हैं इंशाल्लाह जन्नत में। तो पहले सच्ची पक्की तौबा की नीयत रहना नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं चाहता, अल्लाह चाहता कि उमर हो, अल्लाह चाहता कि उस्मान हो, अल्लाह चाहता कि अली हो, अल्लाह चाहता तलहा हो, अल्लाह चाहता जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। अल्लाह को जुल्म जबरदस्ती का अमल पसंद नहीं। अल्लाह ये देखना चाहता है कि फजर में पाप कौन नींद छोड़ के उठता है, अल्लाह ये देखना चाहता है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि पाप जोहर में कौन आता मस्जिद में, सब मुब्तला इन कामों में, सब मसरूफ इन कामों में, कौन आता जोहर में, मोहब्बत में है साला चाहता सो, फिक्र में रहने वाला चाहता सो, दिलो जान से चाहने वाला चाहता सो मस्जिद को। असर में कौन आता है, मगरिब में कौन आता है, इशा में कौन आता है, कौन अदा करता नमाजें, घर में कौन शरीयत के मुताबिक चलता है, दुकानों में कौन शरीयत के मुताबिक चलता है, अल्लाह ये देखना चाहते हैं सो। वरना अल्लाह को क्या जरूरत भाई नमाजों की, जमीन आसमानों में 4 उंगलियों के होते बराबर भी जगह नहीं है, होती इबादत करने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। खुद फरिश्ते कहने लगे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह तेरी इबादत ही करना है, तेरी बड़ाई बयान करना है, अल्लाह हम ही क्यों इंसान को पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह को इबादत करने वालों की जरूरत ही नहीं, क्यों, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों में जमीनों में जितने भी हैं मखलूक़ात सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। तो एक बात समझ में आई कि इंसान का कुर्ता अल्लाह को याद कर रहा है, इंसान की सदरी अल्लाह को याद कर रही है, इंसान की पकड़ी, इंसान की टोपी अल्लाह को याद कर रही है, इंसान का जिस्म अल्लाह को याद कर रहा है। जर्रा जर्रा शय में ये चाहती नहीं, लेकिन अफसोस क्या कि तो जिस्म के ऊपर का कपड़ा तो अल्लाह को याद कर रहा है, जिस्म के अंदर का दिल अल्लाह से गाफिल है। हर चीज अल्लाह को याद कर रही है, दीवारें अल्लाह को याद कर रही है, एक एक जर्रा जर्रा अल्लाह को याद कर रहा। अल्लाह फरमाता है तस्बीहहुम वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह तुम ना समझ में नहीं आती। तो जर्रा जर्रा अल्लाह को याद कर रहा, बस याद नहीं कर रहा है, तो इंसान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु दुआ अल अब्द मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह लापरवाह गफलत वाले दिल के, जो दिल गफलत का दिल, लापरवाह दिल रख ले को दुआ करता ना, अल्लाह ऐसे बंदे की दुआ को कबूल करते ही नहीं। सिर्फ आमीन बोलो दुआओं में, अरे भाई दिल को जोड़ो तो सही कि क्या दुआ मांगी जा रही है, वो भी तक मालूम नहीं लोगों को। आज इमाम साहब क्या दुआ मांग रही, किस बात को आमीन बोलना है, बस आमीन बोलते रहो, आमीन बोलते रहो। जहां आमीन नहीं बोलना वहां भी आमीन बोलो, ऐ अल्लाह हम खताकार हैं, आमीन, ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, आमीन, ऐ अल्लाह हम माँ बाप को तकलीफ देने वाले, आमीन। क्या कबूल करो, माँ बाप को तकलीफ दे रही कबूल करो, गुनाह कर रही कबूल करो, शिर्क कर रही कबूल करो, बिदात में मुब्तला है कबूल करो। आमीन का मतलब वो तो है कबूल करो। अरे कहाँ क्या बोलना वो मालूम है हमारे बंदों को, बहुत फर्क है भाई। बेटा पैदा हुआ, हजरत मुझे बेटा पैदा हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुशी से आया साला मारदाल को गुस्से में जाता। मैं क्या बोल रहा भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। झूठ ना बोलिया मैं क्या तो गलत बोलिया, मैं गलत बोलिया, अरबी में बोलिया वो भी मैं, क्या अरबी में बोलिया भाई, उर्दू में नहीं बोलिया मैं भाई, जहां से आई वहां से वहां जाना था भाई, उर्दू में बोलिया नहीं अरबी में बोलिया, लेकिन उसे गुस्सा आया क्यों? बोलती नहीं अच्छा कर ले तो क्या, क्या बोलती कर ले तो क्या, ये शरीयत में नहीं है बेकाम, मां करे तो क्या, गुनाह किए हैं, इन्ना लिल्लाह बोले तो क्या। एक आया पापरोले को, हजरत बहुत ही दुख की खबर है, अफसोस की खबर है,
कि हमारा अब्बा का इंतकाल हो गया। माशाअल्लाह, क्या बोले? माशाअल्लाह। ऐसा मारना मारता उन्हें पाप, यानी तो दिल में सोच ले चले आता, कब से इंतजार करता था कि नहीं हमारे बाप का मौत का। क्या बोला भाई मैं? माशाअल्लाह का क्या माना है? वही जो अल्लाह चाहता है वही होता है, जो अल्लाह चाहता है। वो उसने बोला मैं, अरे दूसरा का तो बोला मैं, फिर गुस्सा क्यों आ रहा है? जहां जो बोलना वही बोलो भाई। अरे बस सर में इस्तिंजा खाने की दुआ ही पढ़ो, खाना खाते वक्त खाने की दुआ ही पढ़ो, पानी पीते वक्त पानी पीने की दुआ ही पढ़ो। क्या हो जाता है? इस्तिंजा खाने की दुआ, खाने की जगह पर खाने की दुआ इस्तिंजा खाने पर पढ़ कर देख लो, आपको खुद बेजारगी आ जाती भाई। वहां भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। दिल मानता नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, दिल मानता नहीं। खुद ब खुद बेचैनी शुरू हो जाती है, क्या कर रही हूं मैं? इस्तिंजा खाने की दुआ खाने की जगह पर नहीं, दिल मानता नहीं। इसलिए शरीयत जो है वही है, उसमें ना बढ़ाओ ना कम करो, जो है उस पर अमल करो बस। अरे बस सब में जो है बस उस पर अमल करो। तो लोगों को आज मालूम ही नहीं भाई किस बात पर आमीन बोलना, किस बात पर बेशक बोलना, किस बात पर अपने गुनाह का इकरार करना, किस बात पर आमीन बोलना, मालूम ही नहीं लोगों को। तो अल्लाह चाहता है मुखलिस बंदे, अल्लाह चाहता है मुत्तकी बंदे। इसीलिए अल्लाह फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह को सबसे अच्छा अमल वो अमल पसंद है जो हमेशा हो, रती हो। जोश में 10 रकात नफिल आज पढ़ लिया, फिर 10 दिन तक नफिल पढ़े नहीं, क्या कहते हो? ये बराबर कर लेंगे लोग। अल्लाह को क्या पसंद हुआ अमल? अल्लाह को पसंद रोजाना 2 रकात पढ़ो, लेकिन क्या करो? रोजाना पढ़ो। 1 सफा कुरान पढ़ो, लेकिन क्या करो? रोजाना पढ़ो। 100 बार जिक्र करो, सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन क्या करो? रोजाना करो। अल्लाह को ये पसंद। समझ आ रहा है? सहाबा की जमात भाई, इसकी जमात सहाबा की जमात रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा में से हैं, इंतकाल हो गया। इसके बाद हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ने फरमाया खड़े होकर, ऐ लोगों अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करो, क्योंकि सहाबा के जुमले हैं। अल्लाह का जो भी बंदा अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसकी मग़फ़िरत फरमाते थे। भाई सहाबा कितनी मुक़द्दस जमात, जिनके कान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से भरे हुए थे। बड़ा ताज्जुब होता है कि 23 साल देखे कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई 40 साल से देखे, कोई 60 साल से देखे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो किसी को भी होश नहीं, कोई भी होश में नहीं है सिवाय अबू बकर रजी अल्लाह तआला के, पूरे के पूरे। यहां तक कि हजरत उमर भी खड़े हो गए तलवार लेकर। कोई कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के पास बात करने के लिए गए, हजरत उमर जैसे सहाबी भी होश खो बैठ गए। अरे कितने साल से देख रहे थे हमारे नबी को, विसाल बर्दाश्त नहीं हो सका, जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना बर्दाश्त नहीं हो सका। ये मोहब्बत थी सहाबा की, ऐसी मुकद्दस जमात सहाबा की। अरे वास्तव में अल्लाह इसे सहाबा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आपने फरमाया लोगों तुम्हें ऐसे आदमी के जाने का रंजो सदमा हुआ है, मालूम है अल्लाह की कसम आज के बाद ऐसा बंदा नहीं आ सकता। अशरे मुबशरा में से भी, जन्नत की टिकट भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से भी, अमल में भी, तक़वे में भी, तहारत में भी, हर चीज़ में ऐसा बंदा आज के बाद नहीं आ सकता। क्यों? अशरे मुबशरा जो थे वो सारे सहाबा में बदरी सहाबा सबसे अफजल। कौन से?
बदरी साहबा जो बदर में, बदरी साहबा में सबसे अफजल अशर मुबशरा में सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला है। भाई अफजलियत है एक एक। तो अशर मुबशरा में से थे और उनकी खूबियां बयान करते हुए हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने आज तक उनसे ज्यादा कीने से पाक, कीना मालूम नहीं, कई मरतबा बोल दिया हूँ, गुस्सा अलग कीना अलग। गुस्सा किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोई गाली दिया, कोई मारा, कोई तकलीफ दिया, गुस्सा आ रहा है, क्या भी कर रही नहीं, हमें क्या भी करने का इरादा भी नहीं है, बस दिल में नफरत है। कीना कुछ करना, इन्हों गाली दिए मैं गाली देना, इन्हों मारे मैं इनको मारना, इन्हों सताए मैं इनको सताना, ये कीना। तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा कीने से पाक किसी को नहीं देखा। यानी कभी भी किसी के ऊपर दुश्मनी नहीं रखे, उससे बदला लेने की उम्मीदिश नहीं थी हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को। और उनसे ज्यादा नेक दिल आज नहीं है। सहाबा की सबसे बड़ी सिफत अबर्रहुम कुलूबा, दिल बड़े पाक होते थे, सामने जैसे पीछे भी वैसे, पीछे जैसे सामने भी वैसे, सामने एक पीछे से एक। अल्लाह की कसम सहाबा ऐसे नहीं थे। सहाबा हमेशा नेक दिल थे, नेक दिल थे, नेक दिल थे, पाक दिल थे। उनसे ज्यादा शर व फसाद से दूर रहने वाला, लड़ाई झगड़ों से, फितना खड़ा करने से, लड़ाइयाँ खड़ा करने से, जो लोग लड़ाइयाँ खड़ा करते रहती, फितने खड़ा करते रहती, इधर के बातें उधर लगाते, उधर के बातें इधर लगा, लड़ाइयाँ करते रहती, ऐसे भी नहीं थे हजरत मुआज़। और उनसे ज्यादा आखिरत से मोहब्बत करने वाला, हजरत अबू उबैदा से ज्यादा आखिरत से मोहब्बत करने वाला, और उनसे ज्यादा तमाम लोगों की भलाई चाहने वाला, ये सबसे बड़ी सिफत है। हर एक आदमी के अच्छा ही चाहो भाई, बुराई चाहो ना को। लिहाजा इनके लिए दुआए रहमत करो और इनके लिए नमाज जनाजे के लिए बाहर मैदान में चलो। अल्लाह की कसम उन जैसा अमीर आज के बाद नहीं आ सकता। तो लोग मैदान में आ गए, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह का जनाजा भी लाया गया। हजरत मुआज़ रजी अल्लाह तआला जनाजे की नमाज पढ़ा रही, मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला, उलमा का झंडा जिनके हाथ में होगा मैदान हशर में। इतने बड़े सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ उनको भेजा था अरे बसर में। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर उनके साथ दूर तक चलकर गए थे हमारे नबी। उसके बाद कहने लगे कि मुआज़, हो सकता है अगली बार तुम आए तो मुझे नहीं पा सको। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दे रहे थे कि तुम्हें वापस आए तो मैं नहीं रहता, मैं दुनिया से क्या हो चुका होगा, जा चुका होगा। तो हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आने लगे। आखिरी दीदार, फिर जाने के बाद, यमन जाने के बाद फिर वापस आए तो कौन नहीं रहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहते। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि मुआज़, जो भी अल्लाह के रास्ते में बहुत दूर जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के इंसाफ को, अल्लाह के दीन को लोगों को सिखलाने के लिए, तबलीग एतबार से भी, आरे बात में, इल्म के एतबार से भी, हर एतबार से भी, ये किसे खास करना नहीं, कभी भी तबलीग के सफ़र में जाना नहीं, इल्म के सफ़र में भी जाना, अच्छाई के सफ़र में जाना, बीवी बच्चों को नेक नियति से कमाने के लिए जाना, माँ बाप को खुश रखने के लिए कमाने के लिए जाना। जितना दूर आप जाएंगे अरे बासन में, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की अजमत के लिए, बुलंदी के लिए आप जाएंगे, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन तुम मेरे उतने करीब होगे। तो हजरत मुआज़ को थोड़ी हंसी आई, थोड़ा सुकून मिला कि चलो भाई कहाँ तो करीब रहेंगे हम। अरे वो तो हो रहा भाई हम ना, असल तो वो चीज ना, दुनिया में तो बहुत सारे आशिक हैं। आशिक, मैं बोले भाई मेरी बीवी को मैं तुम्हारे से प्यार कर रहा हूँ, तो बीवी भी बोला नहीं मैं भी तुम्हारे से प्यार करती हूँ। भाई नौशा बेट को बोल रहा भाई मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया बोल रहा है, लेकिन बच्ची एक ही एक बात बोल रही, मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। इमाम साहब मजबूरों को बोला थी माफ करना, दुल्हा जनाब नौशा आपका निकाह नहीं हो सकता। अरे हजरत मैं तो 10 बार बोल दिया हूँ। हजरत बोली अगर 100 बार भी आप लिख कर दे दे तब भी आपका निकाह नहीं होगा, इसलिए कि बच्ची को पसंद नहीं है। तो मेरे आशिक रसूल बोलने से काम नहीं चलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में बोलना कि ऐ अल्लाह ये मेरा आशिक था, ऐ अल्लाह ये मेरा उम्मती था,
अल्लाह इसने मेरी उम्मत को जोड़ने का काम किया, अल्लाह इसने मेरी उम्मत को तोड़ने का काम नहीं किया, अल्लाह इसने मेरी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा किया, अल्लाह इसने तेरी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाला कि अल्लाह इसकी शफाअत की जिम्मेदारी मुझे दे दो अल्लाह। ये नबी बोलना भाई मैदान हशर में, ये असल आशिक रसूल। मैं नहीं बोलना उसको कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना कि इन्हें मेरा आशिक था। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाया, है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं। मैं यहाँ हम बोल रहे हूँ भाई अपने आप को मैं आशिक रसूल को कहो, लेकिन वहाँ ना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारा नबी बोल दिया तो इसका दिल अलग था, इसका जाहिर अलग था, तो क्या होना उसमें। तो सहाबा वो चाहते थे, यहाँ नहीं चाहते थे सहाबा। यहाँ तो मिल गया सहाबा को, लेकिन सहाबा चाहते थे वहाँ। सहाबा रोने लगे कि हुजूर आप तो अंबिया के मकाम में चले जाएंगे, हम नीचे रह जाएंगे, तो हम आपके दीदार को आपके दीदार के बगैर हम कैसे रह सकेंगे हुजूर, जन्नत में क्या मजा आ जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्ब, डरो न को। अल्लाह भी साफ कुरान के आयत सहाबा की याद में सहाबा को तसल्ली देने के लिए, हमारे जैसे गुनहगारों को भी तसल्ली देने के लिए अल्लाह कहने लगा डरो नहीं। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। चलो इनके रास्ते पर चलो, तुम्हें भी कहाँ जाओगे, इन्हीं के साथ जाओगे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम पर चलो, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पर चलो ना। चलो कुरान की तफसीर का मतलब आ रहा है, समझ आ रहा है। इनके रास्ते पर चलो, तुम्हें भी कहाँ जाओगे, वहां जाओगे। कौन नहीं चाहता भाई, कौन नहीं चाहता हुजूर की मैयत मैदान हशर में। कोई बोल दो ना, हाथ उठा दो लोग ना, कन तब देंगे सुनने वालों को भी। कोई बोल दे मैं नहीं चाहता हुजूर की मैयत, नाउज़ुबिल्लाह। कोई नहीं, हर एक भी यही कहता कि नहीं नहीं हुजूर की मैयत होना, तो हुजूर की मैयत होना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अक़वाल व अफ़आल को अपनी ज़िंदगी में लाना, हज़रत अबू बकर को मानना, हज़रत उमर को मानना, हज़रत उस्मान को मानना, हज़रत अली को मानना, हज़रत अबू बकर की भी मानना, हज़रत उमर की भी मानना, हज़रत उस्मान की भी मानना, हज़रत अली की भी मानना। दो बोले हूँ मैं, हज़रत अबू बकर को भी मानना, हज़रत अबू बकर की भी मानना। क्या क्या कू की, हजरत अबू बकर को भी मानो कि वो खलीफा अव्वल हैं, सिद्दीक अकबर हैं, और हजरत अबू बकर की भी मानो, यानी हजरत अबू बकर की जितनी भी अहादीस है उनको मानो, जितने भी काम करने के बताएं उन कामों को करो। हजरत उमर को भी मानो कि हजरत उमर खलीफा सानी हैं, अमीरुल मुमिनीन है, अल फारिक बैन अल हक़ वल बातिल है। लेकिन अब उमर की भी मानो, यानी हजरत उमर जितने भी हम सबको काम करने के काम बोले हैं, जितने भी काम बचने से कहे हैं उन सब कामों को करना और बचने के कामों से बचना। हजरत उस्मान को भी मानो कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन है, दो नूर वाले हैं। हजरत उस्मान खलीफा सुव्वम है, हजरत उस्मान दामाद रसूल हैं, हजरत उस्मान हमारे नबी के जन्नत में रफ़ीक हैं, मानो। और हजरत उस्मान की भी मानो कि हजरत उस्मान जितनी भी बातें करने के लिए कहे हैं, जितनी भी बातें बचने के लिए कहे उन सब कामों से बचना, करने वाले कामों को। हजरत अली को भी मानना कि हजरत अली दामाद रसूल हैं, चाचाजाद भाई हैं, हजरत फातिमा के शोहर हैं, हजरत हसनैन करीमैन शरीफैन के अब्बा हैं। और हजरत अली की भी मानो कि हजरत अली जितने भी काम करने के लिए कहें उन सब कामों को करो, और जितने भी काम रुकने के लिए कहें उन सब कामों से रुक जाओ, इसलिए कि इन खुलफा की इख्तिदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा, इन खुलफा की बातों पर अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल। इसी तरह सहाबा को भी मानो, सहाबा की भी मानो, वरना नहीं मिल सकते। जन्नत मुश्किल है, मैयत मुश्किल है। अरे बासर में अच्छा समझा नहीं। तो 3 सहाबा कब्र में उतरे, एक मुआज बिन जबल, ज़हाक बिन कैस, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला उतरे और उनकी नाश को बगली में रखे। बगली का तो मालूम नहीं, कब्र मामूली खोद देती भाई, फिर अंदर तरफ दाहिनी तरफ अंदर खोद देती, लाश को अंदर ढकेल देती, फिर कब्र मामूली छती उस पर मिट्टी डालती। हमें तो वैसा नहीं, कब्र को रखो, हमारे यहाँ रिवाज क्या कहते बंडे रख डालते, ऐसा नहीं। बगली खबर अंदर चले आना, मुकम्मल लाश नजर नहीं आना, खड़को देखने वालों को लाश से नजर नहीं आना, इसे बोलते सो बगली। हमें क्या कहते पूरा कफन दिखता रहता, वो बगली कहते, वो पूरी लाश दिखती रहती, वो बगली कहते हैं उसे जी।
तो फिर बाहर आए, तीनों सहाबा बाहर आए, बाहर आकर कब्र पर मिट्टी डाले। कब्र पर मिट्टी डालना भी बहुत बड़ा इबादत का काम है। भी मैदान हशर में जब मीज़ान तराजू तोला जाएगा तो उस वक्त अचानक नेकियां गिरती कहते, नेकियों के तराजू में, तो आदमी घबरा जाता कहते इतने सारे नेकियां कहां से। तो अल्लाह बोलते कहते तुम फला मेरे मोमिन बंदे के कब्र के ऊपर 3 मरतबा मिट्टी डाला था, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मरतबा जो मिट्टी डाला था तू उठा कर, इसी से अल्लाह पैदा कराया है, इसी में जाना है और इसी से उठना है, इतना बोलकर डालना है। हमें वैसा नहीं दरूद शरीफ पढ़ को डालो, दरूद शरीफ कहीं का भाई, वहां सिर्फ फातिहा पढ़कर डालो, कहीं को आगा वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मरतबा डाल दो, अल्लाह और भी मौका दे डालने का, डालो। लेकिन नहीं, सब खड़े रहेंगे, सब खड़े रहेंगे, डालो भाई, ले लो 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 भाई। लेकिन लेता नहीं कोई। चलो भाई हम आगे बढ़ को काम करें, हम ना करने देते भी नहीं, नहीं मौलाना बस आ जाओ, हमें डाल देते। या तो फजीलत आप तो अमल करो फजीलत पर, या नहीं तो हमना तो भी अमल करने का मौका दो फजीलत पर, लेकिन नहीं करने देते नहीं। अरे वाह सब ने तो आदमी पूछता कहते इतना अच्छा अमल मुझे, इतना ज्यादा नेकियां मुझे कहां से मिल रही। तो अल्लाह बोलते कहते फला मेरे मोमिन बंदे के कब्र के ऊपर क्या डाला था तू, मिट्टी डाला था, ये डालना भी बहुत अच्छा काम। अरे बात सब में तो कब्र पर मिट्टी डालते हुए फिर कहने लगे कि फिर हजरत मुआज बिन जबल कब्र के सराहने खड़े होकर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को खिताब फरमाते हुए फरमाया कि ऐ अबू उबैदा, मैं तुम्हारी जरूर तारीफ करूंगा, मैं तुम्हारी जरूर तारीफ करूंगा, और इस तारीफ करने में कोई गलत बात नहीं कहूंगा। क्योंकि तो तारीफ में बहुत सारे गलत बात बोल देती ना, तारीफा में चुपके जुड़े बात, क्योंकि मुझको अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का डर है। लोगों की तारीफों से खुश हो जाने को, लोग सामने तारीफ करती पीछे तारीफ नहीं करते, लोगों की तारीफों से खुश हो जाने को, मुतमईन हो जाने को। अरे बात में तारीफ उन्हें करे तो कौन, अल्लाह करे तो अल्लाह करे तो तारीफ, लोगों की तारीफ से मुतमईन नहीं हो जाना। अल्लाह वाले रोती लोगों की तारीफों से, अपने आप को हकीर समझते, हमें वैसा नहीं लो, हाँ बहुत ज्यादा तारीफ कर डालते, नहीं मैं वैसा नहीं लो, रोकता नहीं उसे। हमारे हजरत मौलाना अरशद नदवी दामत बरकातुहू, कोई हजरत के बारे में तारीफ शुरू करता, सीधा गर्दन को एक छोड़ दे, मैं बयान करना या तू बयान करना, तू बयान कर ले खड़ा है दे मैं सबके सामने मारते हजरत की तारीफ करना नहीं कौन भी, हजरत सीधा लेकिन मैं खड़े हो जाते, बयान करने मंजे टाइम दिए सो तू बयान कर ले खड़ा है। तारीफ पसंद नहीं आती थी हजरत को हमारे। अरे बस तो सच्ची तारीफ, अल्लाह की कसम जहां तक मैं जानता हूं आप उन लोगों में से थे जो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते थे। हजरत मुआज हजरत अबू उबैदा के बारे में बोल रहे, और जो जमीन पर आजिजी से चलते थे। सहाबा के सिफात भी ये अपनाओ, सहाबा की सिफात ये खाली सुन को कान के मजे लेने को, सहाबा के सिफात अपनाओ जो जमीन पर क्या चलते थे, आजिजी से। हमारे नबी की सुन्नत है आजिजी से चलना, घमंडगी से नहीं चलना। और जो जहालत की बात का ऐसा जवाब देते जिससे शर्म खत्म हो जाए, जिससे शर खत्म हो जाए, यानी जहालत का जवाब ऐसा देते कि शर खत्म हो जाए, लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। और जो माल खर्च करने के मौके पर खर्च करने में ना फजूल खर्ची करते और ना ज़रूरत से कम खर्च करते, बल्कि खर्च को एतदाल, एकदम हद से ज़्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करते खर्च करने में, और एकदम कम भी नहीं बल्कि एतदाल पर खर्च करते। हाँ, और बल्कि उनका खर्च एतदाल पर होता। अल्लाह की कसम आप उन लोगों में से थे जो दिल से अल्लाह की तरफ झुकने वाले, जो दिल से अल्लाह की तरफ झुकने वाले और तवाज़ु करने वाले थे। बहुत सारे लोग सामने से तो हमें क्या हकीर भाई, हमें क्या मामूली भाई, हमें गुनहगार भाई जबान से, लेकिन दिल से वो लो शैतान नचाता रहता अंदर से। आई जो यतीम और मिस्किनों पर रहम करते थे और खियानत करने वाले और मुतकब्बिर किस्म के लोगों से बग़्ज़ रखने वाले थे, ये हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अशर मुबश्शरा में से जो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के उनके सिफात थे। अरे बस सब में उनकी सिफात में बहुत सारी बातें आ गई थी, इसलिए अल्लाह हम सबको इन सारी बातों पर आखिरी सांस तक अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آخری سانس تک صحابہ کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان